Okay, now let's solve few questions. कल जो हम कर रहे थे, okay. Okay guys, look at this question. Write down the position matrix of this triangle. How do you write down the position matrix of the triangle? What do you do? Yes, you just have to put down the coordinates. कैसे? In matrix form. Correct? So a coordinate के a के coordinates क्या है? -3, 2. Correct? b के क्या है? 3, 4. c के क्या है? -2, 0. Correct? So position matrix will be written as -3, 2, 3, 4 and -2, 0. Getting it or not? Understood? Now, second question is asking what? The triangle ABC is to be mapped to a triangle A dash B dash C dash by the single transformations defined by the transformation matrix. This is the transformation matrix. So how will you find the resultant coordinates? So resultant coordinates are found by multiplying transformation matrix with the position matrix that you have just written. Correct? So quickly solve the question. Idea मैंने दे दिया है कैसे solve करना है. Everyone try solving the question. सब लोग सॉल्व करेंगे. अमान, मैट्रिक्स कैसे बनाया समझ में आया क्या? How many of you got the answer? Okay. साहिल, ईशान, क्या बोला? तो फाइनल आंसर निकालो बेटा. You just have to find the multiplication of this. Quickly tell me the multiplication because I have to explain one point based on this. Sahil, Ishan, Aman, Aryav, you guys can at least multiply it in a calculator, right? मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है बस. मिल गया? So are these? No. Yes, that's what I have to explain. That's what I want to explain. That's why I was asking you the question कि आंसर क्या है. So this is the multiplication का आंसर. See, your original coordinate was -3, 2. After that your image is 3, -2. Your original coordinate was 3, 4. After transformation it is coming -3, -4. And third one is your -2, 0. And image is coming 2, 0. What is happening here, guys?
यहां पे ऑल योर कोऑर्डिनेट्स x एंड y, ऑल योर कोऑर्डिनेट्स आर बिकमिंग -x -y, यस और नो? करेक्ट? नाउ इमेजिन वन थिंग, इफ यू रिमेंबर रोटेशन हमने शायद डिस्कस किया था, नॉट हियर बट आई थिंक इन 10th grade वी डिस्कस रोटेशन. इफ ओरिजिनल कोऑर्डिनेट इज x, y, if original coordinate is what? X, y. If you rotate it anti-clockwise, it will become -y, x. And if you again rotate it anti-clockwise, it will become -x, -y. Correct? So when both your coordinates are becoming negative, what is happening? Both your coordinates are becoming negative. Whenever both your coordinates are becoming negative, it means the transformation is rotation by 180 degrees. How many of you understanding it? Raise your hands. So what I'm trying to say here, देखो अभी ये कोऑर्डिनेट्स में अगर यहाँ पे प्लॉट करो 3, -2, यहाँ पे आएगा 3, -2, ठीक है? 3, -2, then -3, -4, -3, -4, and then 2, 0, 2, 0. So देखो यहाँ पे ऐसा ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं? Yes or no? Correct? It is clearly not a reflection along x-axis. Reflection में क्या चेंज होता है? If reflection is along x-axis, in reflection only y coordinate changes. Yes or no? Correct? It is not a reflection along y-axis क्योंकि उसमें सिर्फ x coordinate change होता है. यहाँ पे x और y दोनों coordinate change हो रहे हैं. So it is not a reflection, it is not a stretch, it is not a translation. So बचा क्या? Rotation. Correct? And if rotation is only left, so rotation में अगर तुम्हारा ओरिजिनल कोऑर्डिनेट पूरा का पूरा निगेटिव बन रहा है, लाइक एक्स वाई इज बिकमिंग -x -y, सो इट इज द रोटेशन बाय 180 डिग्री. गेटिंग इट और नॉट? हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? प्लीज रेज योर हैंड्स. अमान, रोटेशन तो समझ में आया कि नहीं? यस, ठीक है. ओके, नाउ सी, यहां से भी तुम इसको समझ सकते हो. कैसे? फ्रॉम योर फॉर्मूला बुकलेट. मुझे एक बात बताओ, लेट्स से आई एम रोटेटिंग बाय 90 डिग्रीज. कितने से मैं रोटेट कर रहा हूं? 90 डिग्रीज. लेट्स से एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन बाय 90 डिग्रीज. एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन बाय 90 डिग्री मतलब थीटा की वैल्यू 90 होगी. करेक्ट? सो थीटा की वैल्यू 90 होगी तो ये cos 90 0 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा. करेक्ट? राइट? उसके बाद अगर इसको वापस से मैं 180 से रोटेट करूं, लेट्स से आई एम रोटेटिंग इट बाय 180 नाउ. किससे रोटेट कर रहा हूं? 180 से. सो ये cos 180 कितना? -1, sin 180 0, sin 180 0, cos 180 -1. गेटिंग इट और नॉट? मतलब हमारा पूरा का पूरा 180 डिग्री रोटेशन में जो मेरा कोऑर्डिनेट्स होता है पूरा का पूरा निगेटिव हो जाता है. गेटिंग इट? बट दिस इज जस्ट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स. ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स में देखो -1 -1 आ रहा है यहां पे. सो इफ यू लुक एट द क्वेश्चन, इन क्वेश्चन इट मेंशन -1 -1. यस और नो? अगर क्वेश्चन ने ऐसा दिया, इफ क्वेश्चन इज गिविंग लाइक दिस, इट मींस एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन बाय 90 डिग्रीज. दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर दैट. अगर -1 -1 इज गिवन, इट मींस इट इज रोटेशन बाय 180 डिग्रीज. रोटेशन बाय व्हाट? 180 डिग्रीज. हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स से कैसे इंटरप्रेट करेंगे? रेज योर हैंड्स. ठीक है. हर्षिल, अमान, थोड़ा सा टाइम लगेगा. अमान, पहला क्लास ही मिस कर दिया था अपन ने, राइट? दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू, इफ यू कैन मैनेज टू कम, प्लीज कम. तूने बोला था आज आएगा. यस, ठीक है. आई होप द पॉइंट इज क्लियर नाउ. What? So could we have eco class on Monday or Tuesday? Wednesday we have eco class. So if you have FA on Thursday, we can keep a little longer eco class if you guys want. ठीक है? Okay. So third question was this: describe fully the transformation that triangle ABC has undergone. ठीक है?
So the transformation was that only. I think we solved this question yesterday. Okay guys, try this question. Look at this question. हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चन? देखो ऐसे डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन, थोड़ा सा तुमको इसके साथ में फॉर्मूला बुकलेट साइड साइड में लेके बैठना पड़ेगा, ठीक है? इसके साथ साथ फॉर्मूलाज को अपन कंपेयर करेंगे तो समझ में आएगा। ओके मैंने साइड में फॉर्मूलाज भी रखे हैं, ठीक है? नाउ अच्छा, कितने लोगों को क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ यू फाइंडिंग इट टफ, प्लीज रेज योर हैंड्स। दोज हु आर फाइंडिंग इट टफ प्लीज रेज योर हैंड्स। किसी को भी टफ नहीं लग रहा है? एवरीवन इज फाइंडिंग इट इजी। हाउ मेनी ऑफ यू फाइंडिंग इट इजी, रेज योर हैंड्स। भाई किधर तो हाथ उठा लो भाई, कोई हाथ नहीं उठा रहा है। एम आई ऑडिबल गाइज? ईशान, साहिल, अरे कुछ तो रिस्पॉन्स करो भाई, ऐसे एकदम गड़े मुर्दे जैसे बैठे हो तुम लोग। सी, यहां पे मुझे दो नंबर्स दे दिए, एक दे दिया है 4 और दूसरा दे दिया है 0.5, करेक्ट? मुझे कंफ्यूज हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। मैं गया फॉर्मूला के पास, किसके पास? फॉर्मूलाज के पास, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस के पास, ठीक है? सो मैं यहां पे एक एक करके फॉर्मूला चेक कर रहा हूं। देखो यहां पे cos टू थीटा माइनस cos टू थीटा, यानी जो भी वैल्यू रहेगी वैल्यू तो सेम टू सेम आनी चाहिए, यस और नो? यहां पे दोनों वैल्यू सेम टू सेम है, यहां पे भी दोनों वैल्यू सेम टू सेम आनी चाहिए, यहां पे भी दोनों वैल्यू सेम टू सेम आनी चाहिए, यहां पे नेगेटिव ऑफ ईच अदर, नेगेटिव ऑफ ईच अदर, यहां पे तो जीरो ही है, यहां पे जीरो ही है, यहां पे जीरो ही है, करेक्ट? ओनली हियर एंड हियर वैल्यूज आर डिफरेंट, यस और नो? यानी इफ हियर इट इज के, हियर इट इज 1, if here it is 1, here it is k, yes or no? It means what? Agar if we are getting two different values, if we are getting what? Two different values, it means it might be a stretch, it might be what? A stretch or combination of stretch, or combination of what? Stretch. So let's do one thing, isko thoda sa decode karte hain, let's decode this. Let's write it like this, 4001 मल्टीप्लाइड बाय 100.5। सो बस एक काम करो, इसका तुम मैट्रिक्स में मल्टीप्लीकेशन करो और मुझे बताओ व्हाट आंसर यू गेट। इफ यू गेट एग्जैक्टली सेम आंसर, इट मीन्स दिस इज स्ट्रेच एंड दिस इज ऑल्सो स्ट्रेच, द अपर स्ट्रेच इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच एंड दिस इज वर्टिकल स्ट्रेच, स्केल फैक्टर। नाउ हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस, रेज योर हैंड्स। थोड़ा बहुत समझ में आ गया लॉजिक, हाउ टू यूज द लॉजिक? वेरी गुड। So just do this multiplication in your calculator. Yes, if I am getting the same answer, if I am getting the same answer, it means what? It is first a vertical stretch, sorry, a horizontal stretch. This is, and this is a vertical stretch, because see, k and 1 is the horizontal stretch, 1 and k is the vertical stretch. Getting it or not? So let's look at the question. Describe in words the transformation of T. And if you guys remember, this is becoming composite transformation now. What is it becoming? Sir, Yes. how do you know which stretch comes first? Does it matter? नो अच्छा, उल्टा एक काम करके देखो, इसको उल्टा मल्टीप्लाई करके देखो तुम लोग, 1 0 0 0.5 एंड 4 0 0 1, ऐसे उल्टा मल्टीप्लाई करके देखो। Do it.
Same thing. इट्स द Same thing. सेम थिंग. सो यहां पे पॉइंट क्या ध्यान में रखना है हमको, देखो अगर तुम्हारा ओरिजिनल फंक्शन, इफ यू हैव ओरिजिनल फंक्शन y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, if you multiply it with some scale factor first, okay, if you multiply with some scale factor, vertical stretch, and if you multiply with some other factor, horizontal stretch, इसका जो कंबाइनिंग इफेक्ट रहेगा, इसका जो कंबाइंड इफेक्ट रहेगा, इट विल बी व्हाट, सेम ओनली. सो इट डजंट मैटर तुम पहले कौन सा लिख रहे हो. गेटिंग इट और नॉट? ईशान, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? Yeah. राइट. सो इट डजंट मैटर. Yesterday we did whatever transformation comes first, multiply that second, something like. यस यस यस. देखो अभी यहां पे मैंने पहले क्या लिख दिया, फर्स्ट आई हैव रिटन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच, यस और नो, एंड हियर आई हैव रिटन वर्टिकल स्ट्रेच, करेक्ट. सो इन एक्चुअल व्हाट वुड हैव हैपेंड, पहले वर्टिकल स्ट्रेच बाय स्केल फैक्टर 0.5 एंड देन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच बाय स्केल फैक्टर 4, यस और नो. when they give it in question, when they are giving transformations in question, whatever order they have given, we follow the reverse of that, yes or no, correct. But when we multiply two matrices, the answer comes the same. So in multiplication it doesn't matter. Getting it or not? Sahil, Aryav, Harshil, Ishan, Aman, Yeah. ठीक है. ओके. सो हमको समझ में आ गया ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, करेक्ट. फाइंड टी इनवर्स, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का इनवर्स निकालो बोल रहे हैं. इज इट वेरी टफ टू फाइंड? व्हाट यू हैव टू डू, 4 0 0 0.5 raised to -1 and enter, that's it. You will get the inverse of that, correct. Last, find the coordinates of the point x comma y if this is that image ka points are given. What is given? Image ka points. Now how to solve this? Try karo sab log ek baar. So question is again very simple. Image is given 12 and -4, correct. To this image you are going to multiply with t inverse and you will get the coordinates of x and y. It is just like equation हमने लिखा था ना, x dash is equals to ax plus b, yes or no. There is no horizontal translation given. If I want to find x, what I will do, x equals to a inverse x dash, correct. A was a transformation matrix, yes or no. Remember this from the first class. A was a transformation matrix. So transformation matrix का तुमने inverse निकाल लिया, and if you multiply that inverse by the original coordinates, sorry, यहाँ पे image से multiply करना है. So 12 comma -4 से अगर multiply करेंगे, you will get the original coordinates. Quickly find it. Grab your calculators and do it fast, everyone. अगर करोगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा. Aman, where is your calculator? हाँ, वेरी गुड. निकालो जल्दी, इनवर्स से के साथ डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो. ईशान, साहिल, समझ में आया क्या? Yeah. Wait, so what did you say? आई एम जस्ट आस्किंग टू कैलकुलेट द ओरिजिनल पॉइंट्स. जीरो 0.5 क्या होगा इसको? 3 comma. Guys, how many of you getting the answer? सिंपल है, मुझे इनवर्स चाहिए, सो 4/4 मैट्रिक्स है. हाँ, सो देखो 4 देन 0 देन 0 एंड 0.5. इसका मैं लूंगा इनवर्स इनटू दूसरा मैट्रिक्स. व्हाट आर द गिवन कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट मैट्रिक्स? 12 comma 12 and -4 enter.
So 3 comma minus 8 is my answer. How many of you have got the same answer? Please raise your hands. Very good. ठीक है, सिंपल सा इक्वेशन ध्यान में रखना है कि x डैश इज माई इमेज, a इज माई ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, x इज माई ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स एंड b इज माई ट्रांसलेशन. दैट्स इट. a रिप्रेजेंट्स स्ट्रेच ट्रांस A represents reflection, rotation, stretch, and B represents translation. Getting it or not? Okay. Move to the next question. ये पूरा हो गया सॉल्व अभी, ठीक है? Okay. Okay guys, try this question. Everyone, have you been taught how to find the area? So you taught us. वो तो मैंने ट्रायंगल का सिखाया था बस. Yes, you can still calculate it. Don't worry, you can still calculate it. Is there like a formula or like a easy method other than like what we did yesterday? Acha, there will be a easy method directly based on calculator where you can plot the points and calculate the area. Yeah. Because we can do that on Desmos. Desmos में डायरेक्टली एरिया. ठीक है, देखो एक बार मैं तुमको रैंडम पहले नॉर्मल मेथड समझा देता हूं, ठीक है? एक काम करते हैं हम, कैलकुलेटर में डायरेक्टली एरिया कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. भेजो. टिल देन जस्ट लुक एट दिस क्वेश्चन गाइज. तुम ये निकाल लो, फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स. टिल देन जस्ट कैलकुलेट दिस. पहला वाला क्वेश्चन छोड़ के पहले ये निकाल लो. Where is my phone? ये मार्क नंदन कौन है? अच्छा ओके, मार्क नंदन नहीं है वो. ईशांश. ओह, ईशांश के सर. Yes, so affine transformations using matrices, combine transformations and area of the object and image. Same to same है, no change. Just logistic functions additional है. So Tuesday we will cover logistic functions in class. ठीक है? Yeah. Okay guys. Affine transformations तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ऐसे ही mentioned है. ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का तुमने निकाल लिया क्या? ओके. ओके, देखो क्वाड्रिलेटरल हैज द वर्टाइसेस. अभी वो कैलकुलेटर में कैसे करेंगे एरिया वाला मैं एक बार तुमको देख के बताता हूं, ठीक है? 2,1. सो लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है? 2,1 यहां पे 2,1 आएगा. 7,1 यहां पे आएगा. दिस इज 2,1, दिस इज 7,1. 4,4 it will be somewhere here and 9,4 will be somewhere here. So this is nothing but parallelogram. What is this? Parallelogram. So इसका vertical distance कितना है? This is 4,4 and this is 9,4. So if you check 9 minus 4 is 5, 7 minus 2 is 5, 4 minus 1 is 3. So vertical distance is 3, horizontal distance is 5. Yes or no? And this is a parallelogram. Parallelogram का area होता है length into height. This base into height. No half half. Correct? Because इसमें दो ट्राइंगल बनते हैं, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू 2 इज नथिंग बट बेस इंटू हाइट. सो बेस इज 5, हाइट इज 3. सो टोटल एरिया इज 15. हाउ मच इज टोटल एरिया? व्हाट इज द डिटरमिनेंट गाइज?
हाँ देखो, डिटर्मिनेंट इज कमिंग -2, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिटर्मिनेंट इज हाउ मच? द मैग्नीट्यूड ऑफ डिटर्मिनेंट इज हाउ मच? द मैग्नीट्यूड ऑफ डिटर्मिनेंट इज 2, सो एरिया विल बिकम 30. एरिया कितना बन जाएगा? 30 बन जाएगा. हाउ मेनी ऑफ यू गेटिंग दिस? प्लीज रेज योर हैंड्स. Sir, can you just show how you did the area of the quadrilateral in 4A1? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कैसे किया? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल के लिए मैंने सिर्फ पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स प्लॉट किए. आई कैन सी दिस कोऑर्डिनेट्स, यस और नो? सो मैंने सिर्फ कोऑर्डिनेट्स इमेजिन करके प्लॉट कर दिए यहां पे, करेक्ट? एंड मैंने सिर्फ साइड्स चेक किया, दिस इज कमिंग 5, दिस इज कमिंग 5, और ये ग्रेडियंट इनका सेम है, मतलब ये पैरेललोग्राम है. क्या है ये? सो वर्टिकल हाइट इज 3, हॉरिजॉन्टल इज 5, सो एरिया इज नथिंग बट बेस इनटू हाइट, राइट? या, एंड दैट्स हाउ आई गेट द एरिया. गाइज यहां पे एक चीज समझो. yesterday I explained you one thing. What was that? Yesterday I explained you, if you are finding determinant, अगर तुम्हारा डिटर्मिनेंट निगेटिव आता है, what was the interpretation for the negative determinant? Tell me. So it was reflecting a reflection kind of thing. Yes or no? कल हमने जो स्क्रीनशॉट निकाल के ग्रुप पे भेजा था, अगर तुमने वो 2 पेजेस, यस, द शेप विल रिवर्स, मोस्टली बी द रिफ्लेक्शन. गेटिंग इट और नॉट? यस और नो? चलो ठीक है, ये वाला एक क्वेश्चन ट्राई करो एवरीवन. डिटर्मिनेंट का अपन मैग्नीट्यूड लेते हैं फॉर एरिया. इफ यू चेक दैट पेज, एरिया ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिटर्मिनेंट एंड नॉट द एक्चुअल साइन. प्लस आया तो प्लस ही लेना है, हमेशा प्लस ही लेना है. डिटर्मिनेंट का प्लस लेना है टू फाइंड द एरिया ऑफ इमेज. गेटिंग इट? Guys, how many of you understanding it? Please raise your hands. Very good. Very good. Good. Nice. बस यहां पे अभी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा के दूंगा, तो तुम्हारा जो कंफ्यूजन होता है वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा. ठीक है? पहले ट्राई करो. आंसर आता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं आता है तो और भी अच्छी बात, मैं एक्सप्लेन करूंगा. Aman, now at least are you able to identify the position matrix, transformation matrix, image क्या है, object क्या है? Yes, sir. इतना तो आ रहा है ना? हाँ सर, थोड़ा सॉल्विंग भी आ रहा है. हाँ ठीक है. So how many of you have got the transformation matrix? Please raise your hands. Very good, Harshil. Okay, ईशान, साहिल, आर्यव, ये पॉइंट समझ में आ रहा है क्या क्वेश्चन? So reflection on the x-axis is 1, 0, 0, -1, right? यस. देखो एक पॉइंट लिखो सब लोग फॉर रिफ्लेक्शन.
एक पॉइंट लिखेंगे सब लोग, फॉर रिफ्लेक्शन, ठीक है। फॉर रिफ्लेक्शन क्वेश्चन इटसेल्फ हैज गिवन अस वन थिंग, y इज इक्वल्स टू tan theta x, yes or no? This is general, this is what? General, okay. Now इसमें conditions to remember लिख लो, conditions to remember, conditions to remember. What are the conditions? First one, if reflection along x-axis, रिफ्लेक्शन अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, तो आंख बंद करके थीटा इक्वल्स टू 0 ले लेना है। थीटा इक्वल्स टू क्या ले लेना है? 0। सो तुम्हारा यहां पे जो भी फॉर्मूला है, वॉट एवर फॉर्मूला यू हैव, एट ऑल द फॉर्मूलाज, मतलब हर की जगह यू विल पुट थीटा इक्वल्स टू 0, थीटा इक्वल्स टू 0, थीटा इक्वल्स टू 0, थीटा इक्वल्स टू 0। गेटिंग इट और नॉट? हर्षिल, योर कंफ्यूजन इज गेटिंग क्लियर नाउ, पूरा का पूरा, ठीक है। इफ इट सेज रिफ्लेक्शन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, x का वैल्यू, थीटा का वैल्यू व्हाट वी विल पुट? 0, ओके। सेकंड, इफ रिफ्लेक्शन अलोंग y एक्सिस, रिफ्लेक्शन अलोंग y एक्सिस, पुट थीटा इक्वल्स टू 90। ये दो एंगल्स वी ऑलरेडी नो। इफ एनीथिंग एल्स इज गिवन, देन वी विल कंपेयर इट विथ tan थीटा, वी विल फाइंड थीटा एंड देन वी विल फाइंड द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। गेटिंग इट और नॉट? अगर क्वेश्चन ऐसा थर्ड कुछ दे दिया, लेट्स सो y इज इक्वल्स टू √3x, देन यू विल फर्स्ट कंपेयर √3 विथ tan थीटा, tan थीटा इज √3, वी विल कंपेयर दिस फर्स्ट, वी विल, दैट इज ऑल्सो फाइन, ठीक है। यू विल फाइंड थीटा एंड देन यू विल यूज इट इन द मैट्रिक्स, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। गेटिंग इट? ओके, नाउ सॉल्व द क्वेश्चन। अभी ट्राई करो। सो अभी तुम अगर ट्राई करोगे, देखो पहले क्या बोला है, एन ऑब्जेक्ट अंडरगोज द वर्टिकल स्ट्रेच, पहले वर्टिकल स्ट्रेच बोल दिया विथ स्केल फैक्टर 2 फॉलोड बाय द रिफ्लेक्शन। चलो इसको अपन सॉल्व करते हैं अभी। अब मुझे सिंपल सी बात बताओ, एन ऑब्जेक्ट अंडरगोज वर्टिकल स्ट्रेच, ठीक है, मुझे ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ढूंढना है। इट इज फर्स्ट अंडरगोइंग वर्टिकल स्ट्रेच विथ स्केल फैक्टर 2 फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन। सो फर्स्ट आई विल राइट डाउन रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स एंड देन स्ट्रेच मैट्रिक्स, yes or no? First I will do reflection and then I will do stretch. How many of you understood this? Whatever sequence is given in the question, whatever sequence is given in the question, I am going to multiply exactly ulta of that. Is this point clear? Harshil, Ishan, Sahil, Aman. So reflection is happening first in the x-axis. It means I have to take theta equals to 0. Now if I take theta 0, so cos 0 is 1, sin 0 is 0, sin 0 is 0, minus cos 0 is minus 1. So 1 0 0 minus 1 is my first matrix. 1 0 0 minus 1 is my first matrix. Second, it is saying vertical stretch. क्या बोल रहा है? Vertical stretch. So I'll come here again and I'll check vertical stretch के लिए क्या है? 1 0 0 k. So k is nothing but the stretch factor. 1 0 0 k. So 1 0 0 vertical stretch factor is 2. So first you will multiply these two matrix and then you will get the transformation matrix. How many of you understood this now? Please raise your hands. Aman, अभी clear हो रहा है क्या? अमान खानियारी, समझ में आ रहा है कि नहीं? सो गया है शायद। बाकी लोगों को समझ में आया क्या? Those who have understood, please raise your hands. और ये ईशान गारखेड़कर, तेरा ये क्या है? डीपी क्या है तेरा? Sir, it's I think
or something. अच्छा ओके, ठीक है, ओके. सो दिस इज हाउ यू विल गेट द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स. ओके, लेट्स लुक एट द सेकंड क्वेश्चन नाउ. इसके बाद कोई दिया ही नहीं है, ठीक है. ओके गाइज, लुक एट दिस क्वेश्चन. ट्राई करो इसको एक बार. Guys, how many of you are understanding this question? Please raise your hands. Those who are understanding it. It is again a simple question. Sahil, what is your answer? Okay. Issue. I'm getting mine in decimals. Okay. I don't think mine is correct. देखो गाइज, इसको हम ऐसे कर सकते हैं क्या? सी, फर्स्ट पार्ट इज मैनुअल, सेकंड पार्ट इज ऑन जीडीसी. ठीक है. नाउ सी, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग एक्स्ट्रा. जो अभी तक अपन ने सीखा है, आई एम डूइंग दैट ओनली. आई हैव टॉट यू ओनली वन इक्वेशन in entire matrix transformations. I have taught only you one equation, that is x dash equals to a times x plus b. Correct? So we will just consider transformation matrix. What we will consider? Transformation matrix. ठीक है. So let's say तुम्हारा फर्स्ट इमेज क्या दिया है? What is your image given? A का इमेज है 18,8, right? So 18,8 is the image. So 18,8 equals to, अभी ये जो मैट्रिक्स है, we don't know what matrix it is. So I will just consider, let's say A, B, C, D. और ओरिजिनल इमेज क्या है? ओरिजिनल ऑब्जेक्ट 7, -3. करेक्ट? कैन यू नॉट फॉर्म टू इक्वेशंस फ्रॉम हियर? देखो, लीनियर मल्टीप्लीकेशन कैसा करते हैं? दैट्स व्हाट यू नीड टू नो. यस. व्हाट? अच्छा, एक साथ ले लिया तो भी सॉल्व हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. फिर वो चार बड़े इक्वेशंस बनेंगे. गेटिंग इट? चार इक्वेशंस कैसे बनेंगे? इफ यू टेक ऑल 4 पॉइंट्स, आई विल शो यू दैट मेथड एज वेल, डोंट वरी. ये भी बता देता हूं एक बार, वो भी बता देता हूं एक बार. ठीक है. मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन, मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है? बोथ ऑफ देम मल्टीप्लाई, हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लाइज विथ वर्टिकल. यस और नो? सो 7a minus 3b. करेक्ट? a इंटू 7, 7a minus 3b आ गया. दूसरा आ जाएगा 7c minus 3d. यस और नो? सो दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 18, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 8. करेक्ट? सेम टू सेम सेकंड में अगर लिखूंगा, इफ आई राइट डाउन द सेकंड वन, व्हाट आई गेट? इफ आई राइट डाउन द सेकंड वन, आई गेट 12, 12, 16. करेक्ट? 12, 16 equals to A, B, C, D
ओरिजिनल इज 2 and 6, so इसका आ जाएगा 2a plus 6b equals to 12 and 2c plus 6d equals to 16. Guys, how many of you understood this equation formation? Please raise your hands. This is one way of forming the equations. ठीक है, मैंने individual points लेके form किया. How did I form it? By taking individual points. Now let's try it using all points together. अभी all points together में क्या होगा, देखो इमेज इधर लिख देता हूं. अभी इमेज में क्या क्या पॉइंट्स आ रहे हैं मेरे, 18, 8, 12, 16, करेक्ट, इक्वल्स टू, it is getting multiplied with 7 minus 3, 2 and 6, and matrix is A, B, C, D, correct? So this is 2 by 2 matrix, this is 2 by 2 matrix, so my formation matrix will be 2 by 2 only. Yes or no? 2 by 2 ही फॉर्म होगा. Why? Because इसका और इसका ऑर्डर सेम है, तो रिमेनिंग विल बी 2 by 2 ओनली. ठीक है, सो A into 7, 7A, B into minus 3B, second C into 7, 7C minus 3D. Yes or no? C into 7, D into minus 3. Again A into 2, so 2A and plus 6B, 2C plus 6D equals to 18, 12, 8, 16, correct? When two matrices are equal, their corresponding elements are equal. So what you get? You get 7A minus 3B equals to 18. You get 2A plus 6B equals to 12. You get 7C minus 3D equals to 8. You get 2C plus 6D equals to 16. देखो, are you not getting the exact same equations that we solved separately and together? Say yes or no. Guys, so way 1, this is way 2. Now it completely depends on student, कौन सा way उसको simple लग रहा है. Only one more way. Yes, बोलो. So if you put the new points A dash and B dash, so if you put like 18, 12, 8, 16 in one matrix equals to we can just say. अच्छा, अभी इसमें तुम थर्ड वे भी देख लो. थर्ड वे क्या है? इफ यू वांट टू फाइंड दिस मैट्रिक्स, इसको इधर इनवर्स मल्टीप्लाई करके देखो. आई थिंक यू विल गेट द सेम आंसर. Yes, if you write 7, 2, minus 3, 6 inverse multiplied with 18, 12, 8 and 16. ठीक है, एक बार चेक करो इसका मल्टीप्लीकेशन क्या आता है. समझ में आया? अंडरस्टूड? ऑनलाइन वाले समझ में आ रहा है कि नहीं? हर्षिल, व्हाट इज द मल्टीप्लीकेशन? इसका मल्टीप्लीकेशन करो एक बार, क्या आ रहा है? So I think it's first you do the second matrix and then you multiply by 7 to minus 3. ओके, यस, बोलो आर्यव. Sir, after we got those equations, हाँ, I put them in solve and then found the value and then put in the matrix. That's fine. that's it. That's what you do. Whatever ABCD values you get, you will put it here. So if you do let's solve for 4 equations. यस, 4 नहीं, देखो ना, यहां पे ये दो A और B के फॉर्म में है, ये C और D के फॉर्म में है. लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सेपरेटली. So I'm getting 3, 1, 2. Yeah, so it's same. 3, 1, 2, 2, correct. साहिल, समझ में आया क्या? Yes. या
अमान, अमान खत्री तो सो गया ऐसे लग रहा है मुझे। समझ में आ रहा है क्या? व्हाट इज द आंसर शो? या ओके। सो देखो यहां पे तीसरा वे जो है ना, तीसरे वे में क्या होगा, सी हमको सिर्फ ए बी सी डी चाहिए, करेक्ट। हियर इट इज पावर 1, इसके साथ में तुम इसका इनवर्स अगर मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट द आंसर। सो तुम्हारा जो राइट हैंड साइड का मैट्रिक्स है, इसके साथ में अगर तुमने इसका इनवर्स भी मल्टीप्लाई कर दिया, स्टिल यू विल गेट द सेम आंसर। यस और नो हर्षिल? या ये इसको उल्टा मल्टीप्लाई करना है बस। अमान, ये वाला क्वेश्चन छोड़ के इससे पहले जितना सिखाया समझ में आया क्या? I think we have done this question in last class. Chalo guys, last question. Question 8. Everyone, give it a try. Guys, how many of you are understanding this portion? Please raise your hands. Okay guys, should I solve? देखो, द ट्राइंगल PQR विथ वर्टाइसेस इज ट्रांसलेटेड। देखो पहले ट्रांसलेशन लिखा है, क्या लिखा है? ट्रांसलेशन। फर्स्ट टाइम वी आर हैविंग द क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रांसलेशन एंड देन इनलार्ज्ड। अभी देखो दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक्स डैश इज नथिंग बट a टाइम्स x प्लस बी, यस और नो? b इज ट्रांसलेशन, a इज इनलार्जमेंट, करेक्ट? सो नॉट टू वरी, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स में इधर फर्क नहीं पड़ेगा, करेक्ट? सो a इज व्हाट? इनलार्जमेंट दिया है। क्या दिया है? इनलार्जमेंट। सो फॉर इनलार्जमेंट हाउ डू वी राइट? फॉर इनलार्जमेंट हाउ डू वी राइट? For enlargement, how do we write? Look here.
for enlargement with scale factor k, your diagonals are with the same factor. So enlargement is happening by 3. So तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स रहेगा 3003. yes or no? करेक्ट. ट्रायंगल के वर्टाइसेस दे दिए पी क्यू आर इज ट्रांसलेटेड बाय द वेक्टर, ठीक है, एनालाइज्ड बाय द फैक्टर. फाइंड द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन इन द फॉर्म ए एक्स प्लस बी बोल रहा है, ए एक्स प्लस बी का फॉर्म बोल रहा है. करेक्ट. सो यहां पे पहले मैं एक्स वाई लिख देता हूं. व्हाट आई विल राइट डाउन, एक्स वाई प्लस बी इज गिवन एज -7,2. सो इसको तुम थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा. दिस इज व्हाट इज योर आंसर. सो वेट, इसमें एक थोड़ा सा छोटा सा मिस्टेक हो गया. व्हाट इज दैट? मुझे एक बात बताओ, पहले ट्रांसलेट किया है एंड देन इनलार्ज किया है, यस और नो? व्हाट इज डन गाइज? पहले ट्रांसलेशन एंड देन इनलार्जमेंट, करेक्ट. सो मैं जो मेरे एक्स और वाई वैल्यूज है उनको तो चेंज कर सकता हूं कि नहीं? आई कैन चेंज माई एक्स एंड वाई वैल्यूज, यस और नो? आई कैन चेंज माई एक्स एंड वाई वैल्यूज. सो यहां पे -7, तो ये x -7 आ जाएगा, करेक्ट. और y को 2 से किया तो ये x + 2 आ जाएगा, यस और नो? गाइज, हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंडिंग इट? प्लीज रेज योर हैंड्स. दोज हु आर अंडरस्टैंडिंग इट प्लीज रेज योर हैंड्स. जैसे अपन ने लॉजिक सीखा है, एक्चुअली वही लॉजिक यहां पे कैरी फॉरवर्ड होने वाला है. दोनों टाइप से तुमको समझाता हूं मैं क्वेश्चन, ठीक है. आई विल एक्सप्लेन यू बोथ दी वेज. देखो, हाँ एक सेकंड रुको, देखो, आई विल एक्सप्लेन यू बोथ दी वेज. पहला वे देखो, मेरा x, y कोऑर्डिनेट जो है, माय x, y कोऑर्डिनेट ट्रांसलेट हो रहा है. सो आई कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट इन माय x, y, यस और नो? करेक्ट. सो मेरा x, y हो जाएगा x -7 एंड x + y + 2, करेक्ट. ट्रांसलेशन में एडिशन सब्ट्रैक्शन तो होता है कि नहीं? एंड देन इनलार्जमेंट इज हैपनिंग बाय 3003, yes or no? If you expand this, if you multiply and expand this, so 3 times x -7, correct? So ये 0 आएगा नहीं, इधर 0 आ जाएगा, ये 0 रहेगा, और ये 3 times y + 2 आ जाएगा, yes or no? How many of you understanding this? इसमें सिंगल ही बनेगा. एक सेकंड, 2/1 मैट्रिक्स है ना वो. So this is 3 times, ये आ जाएगा 3 times x -7, और ये आ जाएगा 3 times y + 2. How many of you understanding it? Please raise your hands. साहिल, ईशान, हर्षिल, अमान, आर्यव. ओके, तो ये आ गया मेरा सिंपल आंसर. इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो क्या हो जाएगा? 3x - 21 एंड 3y + 6, yes or no? 3x - 21 and 3y + 6, correct? Getting it or not, guys? How many of you understanding it? Please raise your hands. सिंपल है, राइट? ये एक तरीका हो गया सॉल्व करने का. This is 2/1 and this is 1/2. This is 2/2, this is 2/1, so 2/1 आएगा, करेक्ट. ठीक है, ओके. नाउ सेकेंड वे में क्या बोल रहा हूं, हमने एक सिंपल सी चीज सीखी है. क्वेश्चन ने पहले ट्रांसलेशन मेंशन किया है, उसके बाद इनलार्जमेंट मेंशन किया है, करेक्ट. सो पहले मैं इनलार्जमेंट कर लूंगा, फिर ट्रांसलेशन कर लूंगा, राइट. सो इनलार्जमेंट में आई विल मल्टीप्लाई ऑल माई फैक्टर्स बाय 3. आई विल मल्टीप्लाई ऑल माई फैक्टर्स बाय 3. सो इनलार्जमेंट में पहले 3/3 मैट्रिक्स आ जाएगा, करेक्ट. उसके बाद x, y, एंड फर्स्ट टाइम डूइंग इनलार्जमेंट, तो जो भी मेरा x और y कोऑर्डिनेट रहेगा, सेकेंड टाइम में जो चेंज करने वाला हूं, वो 3 टाइम्स हो जाएगा कि नहीं? सो जब वो 3 टाइम्स हो जाएगा तो 3 times 21 एंड 3 times 2 is 6. तो ऐसे फॉर्म में भी मैं इसको लिख सकता हूं. गेटिंग इट और नॉट, गाइज? यस और नो? ठीक है, ओके. देखो, आई थिंक आई हैव फॉरवर्डेड दिस पीडीएफ ऑन ग्रुप. इसमें कि तुम बाकी के क्वेश्चंस ट्राई करो एज अ होमवर्क, ठीक है.
क्वेश्चंस ट्राई करो. हमारी जो ट्यूसडे को क्लास होगी उसमें हम लॉजिस्टिक फंक्शंस देखेंगे, ठीक है. एंड थर्सडे आई थिंक वी हैव द FA, करेक्ट? ओके, अच्छा, ओके.